Hello everyone, I am Poonam Das, your EVS teacher. How are you all? I hope you all are fine and healthy. Children, I must appreciate you all for regularly watching the video classes and utilizing your time in this lockdown period. Children, today we are going to start the second chapter of NCERT class 5th EVS, that is a snake charmer story. So let's start. A snake charmer story. This is the first part of this chapter, so here we will know about a snake charmer. Okay, children? Children, you must have seen snake charmers in many movies and pictures, and you must have wondered how these people can control the snakes, how these people make the snake to dance. From where do they get these kinds of snakes, and aren't they scared to touch the snakes? We all will get the answers to our questions from Aryanath. Aryanath, a snake charmer who is going to tell his story to us. So let's read. I can do something special which I am sure none of you can do. So Aryanath is saying that he can do something special which he is sure that none of us can do. Do you know what? क्या आपको पता है क्या वो कर सकता है जो हम नहीं कर सकते? He is saying that he can play the bean. वो कह रहा है कि वो क्या प्ले कर सकता है? बीन. तो बीन तो वो सही कह रहा है क्योंकि हमें तो बीन बजाना नहीं आता, लेकिन आर्यनाथ को बीन बजाना आता है. तो he is saying that he can play the bean. That is true. So what is bean? Bean is a musical instrument used by the snake charmer to charm the snakes. बीन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्नेक चार्मर मतलब जो सपेरे होते हैं जो स्नेक को चार्म करते हैं बीन को बजा के, वो उसको यूज करते हैं. You must be surprised. Yes or no? You must be surprised that he is a snake charmer and he can play bean, but we cannot. Yes, I can make snake dance by playing the bean. So we all get surprised or amazed when we see that how snake charmers make the snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. So he is saying that he has learned this art from his family members, that is his father, his grandfather, and now he can play also. We people are known as Kalbelias. So he's saying that those people who belong to this snake charmers community are called Kalbelias. So Kalbelias, who are Kalbelias? Kalbelias are the group of people who make the snake dance, or the group of snake charmers are called Kalbelias. He's saying, what he's saying, Arinath saying about his grandfather. My grandfather, Roshan Naji, was famous amongst our people. He's saying that his grandfather was so famous amongst snake charmers community. He could easily catch many poisonous snakes. उसके जो ग्रैंडफादर है बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कोई भी जहरीला सांप हो, पॉइजनस स्नेक हो, उसको वो पकड़ लेते थे. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his word. So Aranath's grandfather always used to tell story about the snakes, and now he is also saying one of the story. So let's listen to his own words. So first of all, we all knew about the Kalbelias. Who are Kalbelias? So let's read once again. The group of snake charmers are called Kalbelias.
or the community of snake charmers is known as Kalbelias. These people move from village to village to entertain people. So Kalbelias are the group of people who move from village to village to entertain people by playing bean and make the snakes dance. So here you can see the picture of snake charmers who are also called saperas. Sapera in Hindi we call saperas in snake charmers. So we have seen the picture. Here this is a person. There is a person who is playing a bean. This is a bean and make the snake dance on the music of bean. So let's see what Arinath grandfather say. As we all read that Arinath's grandfather is very famous person in snake charmers community. So he used to say he used to tell so many stories about snakes. So here what he remembers. Dadaji remembers. From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas. दैट इज स्नेक चार्मर्स. दादाजी कहते हैं कि मेरे दादाजी और दादा के दादाजी मतलब पर दादाजी के समय से चला रहा है कि हम लोग हमेशा से ही क्या है जो है सपेरास रहे हैं. वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास. हमेशा से हम स्नेक चार्मर्स ही रहे हैं और हमारी जो पीढ़ी है जो स्नेक चार्मर्स ही रही है और आगे वाली पीढ़ी भी स्नेक चार्मर्स ही के लिए ही है. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो कहते हैं कि स्नेक्स जो है हमारे जीवन के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बो बास्केट. वो कहते हैं कि वो जो है क्या किया करते थे उनके समय में, वो गांव के गांव घुमा करते थे और अपने स्नेक्स को लेके जाया करते थे. किस में कैरी करते थे वो स्नेक्स को? बैम्बू बास्केट में. Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us and we would then take out our snakes from the basket. और जब भी वो किसी भी गांव में जाते थे तो गांव में जब रुकते थे तो वहाँ क्या होता था, जहाँ वो रुकते थे वहाँ बहुत बड़ा क्राउड आ जाता था. क्राउड मीन्स भीड़ आती थी लोगों की, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और जो है वो क्या करते थे उसके बाद वो अपने बास्केट से, बैम्बो बास्केट से जो है जिसमें स्नेक्स होते थे उनको वो अपने निकालते थे शो के लिए. सो पहले यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ स्नेक चार्मर एंटरटेन पीपल. जैसे कि हमने पढ़ा स्नेक चार्मर्स प्ले बीन एंड मेक द स्नेक्स डांस. स्नेक चार्मर्स जो है बीन को प्ले करते हैं और फिर स्नेक उसकी आवाज से या धुन से वो प्ले करते हैं, डांस करते हैं. तो बीन कैसा दिखता है आप देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको दिखाया. So what is bean? Bean is a musical instrument used by the snake charmers to charm snakes. Snakes को charm करते हैं, वो musical instrument को play करते हैं और musical instrument क्या है? Bean. So I also told you that they carry their snakes in bamboo baskets. Snake charmer move from village to entertain people, and how they can entertain people? By playing bean and making the snakes dance. And how they carry their snakes? They carry their snakes in bamboo basket. Here you can see what kind of bamboo basket, how they can carry this snakes. So here, a snake dances when the bean moves. Snake dances when the bean is moved. Sapera entertain people with snake dance and music of the bean. Here you can see in this picture just like this, only people gathered around and the snake charmer play the bean and snake dances on the music of bean. So here is a small clip of snake dance and a snake charmer playing the bean and snake is dancing. Just listen carefully children and see the video. So all of you have just seen the video how the snake charmer is playing the bean and making the snake dance. So next, let's read the next paragraph of this chapter.
Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there are many types of medicines for them. We made these medicines for plants collected from the forest. So they told, उन्होंने कहा कि जब ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, जब हमारा शो हो जाता था, जैसे कि आपने देखा अभी एक शो, एक आपने वीडियो क्लिपिंग देखी कैसे स्नेक चार्मर शो दिखा रहा है, स्नेक डांस करवा रहा है, तो वो कहते हैं कि उस समय जब उनका शो खत्म हो जाता था उसके बाद भी लोग जो है वहीं पे इकट्ठा रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके टिन बॉक्स में बहुत तरह के जो है मेडिसिन है जो वो उनके लिए लेके आए हैं। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ये जो मेडिसिन है जो स्नेक चार्मर से कहाँ पे कलेक्ट कर कैसे बनाया उन्होंने इन मेडिसिन को, उन्होंने ये प्लांट्स जो फॉरेस्ट से इकट्ठा करके लाए हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स है वहां से उन्होंने इस मेडिसिन को बनाया है। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। तो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये जो मेडिसिन बनाना और ये कौन से मेडिसिन कौन सा प्लांट किस मेडिसिन या किस चीज के लिए हेल्पफुल होगा, कौन से मेडिसिन बनाने के लिए हेल्पफुल होगा, वो ये सारी चीजें उन्होंने किससे सीखी है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी है, मतलब आर्यनाथ के ग्रेट ग्रैंडफादर से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off। तो ग्रैंडफादर जो है आर्यनाथ के वो बहुत ही अच्छा फील करते थे क्योंकि वो अपने इन मेडिसिन से लोगों की हेल्प कर पाते थे, क्योंकि उस समय जो है विलेजेस में या दूर दूर जगहों में मैक्सिमम जो है हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या बहुत डॉक्टर्स होते ही नहीं थे, बहुत दूर शहरों में जाके मेडिसिन या हॉस्पिटल्स मिलता था, जिसके कारण लोग जो है इतना इजीली अवेलेबल ना होने के कारण वो स्नेक चार्मर से जो जो भी मेडिसिन उनको हेडेक के लिए, फीवर के लिए, वॉमिटिंग के लिए, एलर्जी के लिए या कोई कोई इंसेक्ट बाइट के लिए जो मेडिसिन है वो इन स्नेक चार्मर से वो लिया करते थे। और इस स्नेक चार्मर को भी बहुत अच्छा फील होता था जब वो लोगों की हेल्प करते थे जहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल्स नहीं है या बहुत दूर है। In return, people would give us some money और फूड ग्रेन। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इसके बदले लोग जो है उनको क्या देते थे, ये जो मेडिसिन और ये जो शो दिखाते थे उसके बदले लोग जो है उन्हें पैसे देते थे या फूड ग्रेन्स देते थे, अनाज देते थे, जिससे क्या उनका जीवन जो है वो चलता था कि जो वो शो करते हैं, शो से जो उनको पैसे या फूड ग्रेन्स मिलता है उससे उनकी लिविंग लाइवलीहुड चलती है, उनका लाइफ चलता है, उनका खाना पीना घर चलता है। तो आप देख सकते हो किस तरह का टीन बॉक्स में वो मेडिसिन प्लांट्स जो है, मेडिसिन जो प्लांट से क्रिएट बना के ले आते हैं लेके आते हैं। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो ये सारे हर्ब्स है, मेडिसिन है। Sometimes I was called to places where someone had bitten by a snake. From the mark of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person। तो वो कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा भी होता था उनके ग्रैंडफादर के समय में, ग्रैंडफादर और उनकी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया जाता था दूर जगहों से भी जहाँ पे किसी स्नेक ने किसी को बाइट कर दिया है। देख रहे हो आप स्नेक बाइट का मार्क देख रहे हो यहाँ पे। तो फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटेन द पर्सन। तो ये जो स्नेक चार्मर्स है वो स्नेक बाइट से ही जो है वो ये पता लगा लेते थे कि कौन से स्नेक ने जो है इसको काटा है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द स्नेक बाइट दे कैन फाइंड आउट विच स्नेक हैज बिटन। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। और फिर उसी हिसाब से वो उस स्नेक के बाइट के हिसाब से कि कौन से स्नेक ने काटा है तो फिर वो मेडिसिन उनको दिया करते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। पर कभी काफी समय ऐसा भी होता था कि वो समय पे नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि वो गांव या विलेज बहुत दूर है और उनको पहुंचने में समय लग जाता था, जिस कारण से वो समय पे ना पहुंचने के कारण जो है जो स्नेक बाइट जिसको किया गया है वो उसकी मृत्यु भी हो जाती थी, डेथ भी हो जाता था ऑन द स्पॉट। एज यू नो सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ
on the spot। तो जैसे कि आपको पता है कुछ स्नेक बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो उनके स्नेक बाइट से ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस। तो ज्यादातर स्नेक जो है नॉन पॉइजनस ही होता है, कुछ ही स्नेक जो पॉइजनस होते हैं लेकिन वो बहुत डेंजरस होते हैं और उनके बाइट से जो है ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाता है। फिर लिखा है आपका sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake I would catch that snake। कभी कभी ऐसा भी होता था कि फार्मर्स जो है चिल्लाते हुए भागते हुए उनके पास आते थे कि स्नेक है, तो वो जो है उनके लिए वो स्नेक को भी पकड़ देते थे। तो स्नेक चार्मर्स जो है लोगों की काफी तरह से हेल्प करते थे, उनको शो भी दिखाते थे जिससे वो एंटरटेन होते थे, क्योंकि उस समय जो है दैट टाइम पीपल डोंट हैव TV, mobile, or any smartphone like us, just like us, we all have now. But that time they used to see these kind of shows, animal shows, and natak, dramas. Okay, so snake charmers, snake charmer used to entertain people by these animal shows. Okay, and here snake, there is something written, what snakes the friend of farmer. How snakes are friend of farmers? Because snakes help the farmer to save their crop from the field rats by eating them। तो जैसे कि फार्मर्स के लिए स्नेक जो है फ्रेंड जैसा भी है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड होता है, जहाँ खेत होता है, वहां जहाँ क्रॉप्स ग्रो है, जहाँ जो उनके अनाज है जो ग्रो हुए हैं, वहां रैट्स हो जाते हैं, फील्ड में रैट्स होते हैं। तो ये रैट्स जो है उनके क्रॉप को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो क्रॉप्स को खाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाता है उनका जो भी मेहनत है। तो जो है ये स्नेक्स जो है इन फील्ड रैट्स को खा जाते हैं। तो रैट्स को खा जाते हैं, दैट मीन्स उनके क्रॉप्स बच जाते हैं, रैट्स तो नहीं होते। तो इसीलिए स्नेक्स को जो है फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि जो है वो क्रॉप को सेव करता है रैट को खा के। जो फील्ड के रैट्स होते हैं उनको खाने से क्रॉप्स जो है फार्मर्स के बच जाते हैं। So after all, catching snake was something I had been doing since my childhood। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये जो स्नेक को पकड़ने का काम है, सारी चीजें उनको आती हैं, वो स्नेक्स को पकड़ लेते हैं, वो पॉइजनस स्नेक के बाइट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो बचपन से ये सारी चीजें करते आ रहे थे, तो स्नेक को तो पकड़ ही सीख चुके हैं, बहुत इजीली वो ये चीजें कर लेते हैं। Oh, those were the good days। वो क्या समय था। दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा समय था। We could help a lot of people in many ways। हम जो है स्नेक चार्मर्स जो है लोगों की बहुत तरह से मदद कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि वो लोगों को एंटरटेन करते थे, वो मेडिसिन देते थे लोगों को जहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर्स नहीं थे। जो हर्ब्स है, जो प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स है, वो फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे और लोगों को दिया करते थे। एंड वी ऑल्सो एंटरटेन देम, उनको एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। वो आज के समय जैसा नहीं था वो समय, कि आजकल जो है लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, टीवी को खोल लेते हैं और एंटरटेनमेंट अपना देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देख लेते हैं। लेकिन उस समय क्या क्या होता था, लोग गांव गांव जाते थे, शोज दिखाते थे, गाना गाते थे, नाटक करते थे, और एनिमल शोज होता था। मंकी जैसे बंदर का जो खेल होता है वो भी दिखाया जाता है ना, वो सारे चीजें। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fung। He also taught me how to close the tube of poison in the snake mouth। तो आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मतलब मैं बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे पॉइजनस टीथ, मतलब जो स्नेक का जो पॉइजनस टीथ है, उस जिसे हम फंग कहते हैं, फंग्स को जो है टीथ को, इस पॉइजनस टीथ को रिमूव करना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और उन्होंने ये भी सिखाया है कि फंग को तो उसको रिमूव करना ही है, प्लस उन्होंने ये भी सिखाया कि जो जिस ट्यूब में पॉइजन होता है उस स्नेक के माउथ से, उसको भी कैसे क्लोज करना है वो सिखाया है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो स्नेक का। देयर इज अ डायग्राम। दिस इज अ, ये जो टू टीथ है ना सामने, ये है फंग, ये हॉलो टीथ है, अंदर से एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर, जो एक ट्यूब से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक बैग है
जिसको इसे कहते हैं पॉइजनस ग्लैंड। यहाँ पॉइजन होता है और ये इस ट्यूब से, ये जो है ये जो है ये है पॉइजनस ग्लैंड और ये कनेक्टेड है ये ट्यूब से। तो ये ट्यूब से होते हुए ये फंग से, ये जिस भी पर्सन को ये काटता है या जो उसका प्रे है, जो उसका शिकार है, उसके बॉडी में वो जो पॉइजन है इंजेक्ट कर देता है। जब इसको बाइट करता है और इस ट्यूब के से थ्रू ये जो पॉइजन है उस बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, स्नेक जो है पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं और नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं। जब पॉइजनस स्नेक्स जो है किसी पर्सन को कट बाइट करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो हमने पढ़ा फंग क्या होता है। फंग एक हॉलो टीथ होता है या पॉइजनस टीथ होता है जो जिसके थ्रू उसके शिकार के बॉडी में जो है वो पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, पॉइजन ट्रांसफर कर देता है। तो हम देख लेते हैं फंग क्या है। फंग्स आर टू पॉइजनस हॉलो टीथ ऑफ स्नेक्स कनेक्टेड टू द पॉइजन ग्लैंड आर कॉल्ड फंग। फंग जो है दो पॉइजनस टीथ है, हॉलो टीथ है, अंदर से स्पेस है, एम्प्टी है, जो कि कनेक्टेड है एक ट्यूब से। और ये ट्यूब जो कनेक्टेड है पॉइजनस ग्लैंड से, ये पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन निकल के ये टीथ के, ये फंग के थ्रू बॉडी में जो है पॉइजन ट्रांसफर हो जाता है। गॉट इट क्लास? सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। डू इट बाय योरसेल्फ। जैसे कि हमने चैप्टर पर पढ़ा स्नेक्स के बारे में, स्नेक चार्मर के बारे में, बीन के बारे में, कैसे वो बीन प्ले करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। ठीक है। स्नेक बाइट किससे करते हैं? वो उनके फंग से। और फंग क्या होता है वो भी हमने पढ़ा। तो जो चैप्टर है यहाँ पे आपका ये पार्ट जो है यहाँ फिनिश होता है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। डू इट बाय योरसेल्फ। इन क्वेश्चंस को आपको खुद ही करना है और इसके आंसर्स लिखने हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं रीड करके आपको सबको समझा देती हूँ। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेल, क्या आपने कभी किसी को देखा है बीन प्ले करते हुए? कहाँ देखा है? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेल, क्या आपने स्नेक देखा है? कहाँ देखा है? वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई, क्या तुम उससे डरे थे और क्यों डरे थे? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? तो आपको आंसर देना है। In the chapter 1 you read that snake do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? जैसा कि अभी हमने इस पार्ट में पढ़ा कि स्नेक जो है, जब स्नेक चार्मर्स जो है बीन प्ले करते हैं तो वो डांस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्नेक के तो ईयर्स होते ही नहीं है, वो कैसे सुनते हैं? उनके तो एक्सटर्नल ईयर्स होते ही नहीं है, वो तो वाइब्रेशन को फील करते हैं, मूवमेंट को फील करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्नेक जो है बीन को सुन पाते हैं, बीन की आवाज को सुन के डांस करते हैं या उसके मूव्स को देख के वो डांस करते हैं? क्या लगता है आपको? इसके आंसर्स आपको करना है। डू इट बाय योरसेल्फ एंड राइट योर ओन आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट. We will meet in the next part. Okay children, thank you. Stay home, stay safe.